Good afternoon. I think we will start. Students will join. Okay. Yesterday we have finished out the chapter, which was relating to the patent. So the all provisions of the Patent Act 1970. Yesterday we have finished out. Okay. Now today we are going to start the new chapter of your syllabus, and the new chapter of your syllabus we are going to start is the Design Act 2000. Is the law we are going to start. Okay. We will try to finish it out because it's a smaller lesson. Okay. So Design Act 2000 is the lesson which is an interesting also. We will start this particular lesson. Okay. So start in Design Act 2000. The topics today we are going to cover are
the very first thing, as usual, we will cover up is the historical development of the design law. Because I already told you that every chapter of your syllabus contains the history. Okay, so same with the design also. So we are supposed to see the historical development of the Design Act 2000. Then number 2 point today we will discuss, that is concept of the industrial design. Number 3 point we will discuss, that is procedure of the registration of the design under the Design Act 2000. Number 4 point we will discuss is it possible to cancel the registered design? The answer is a yes. Then what is the provision for the cancellation of the design? Also we will deal. Okay. Then next point we will deal is the person who gets the registration of the design, that person will have certain rights. Okay, so what are the rights of the design holder is the point we will cover. Okay, and lastly, if I have a registered design and anybody else make infringement of my design, which also called as I already told you, piracy of the design, what are the legal remedies I have for the piracy of the design. Okay, so all these points we are going to cover. Okay, history and development of the design law. Number 2, concept of the industrial design. Number 3, registration of the design. Number 4, cancellation of the registered design. Number 5, rights of the design holder. And number 6, remedies which a design holder have for the infringement or piracy of the design. Okay, so all these points we are going to cover up. Now let's upon first have a look over. As usual, the very first question which come in the mind is that what is mean by this word design, and what is the need of protecting the design. डिजाइन वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है और डिजाइन को प्रोटेक्ट करने की एग्जैक्टली जरूरत क्या है, इस दो क्वेश्चंस पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देते हैं. ओके, सी फ्रेंड्स, the today's world is the world of appearance. In the today's world, how the product looks is a very important. जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो वो प्रोडक्ट दिखता कैसे, इसको आज की दुनिया में बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया. प्रोडक्ट्स विच आर आर्टिस्टिकली डिजाइन, जो प्रोडक्ट अच्छे डिजाइन होते हैं दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर्स का अटेंशन वो क्या कर देते हैं, आसानी से अट्रैक्ट करते हैं. जब भी we went into the market and we have the choice of selecting the goods, then we may prefer the goods which are artistically designed, which looks good. हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम ऐसे गुड्स को खरीदे वो दिखने में कैसे वो लोग अच्छे हैं, which are artistically looking good product हम लोग क्या करेंगे वहां पे प्रेफर करेंगे. Because see, if you want to increase the sell of your product, distribution of your product, it is important that it should have some design, it should have some look, quality is important, no issue of the product, but as well as how the product looks, it is also very important. Okay, see for example, suppose you are going in the market and want to purchase the mobile, you will look to the design of mobile. Okay, if you went into the market, okay, and you want to purchase simply shoes also, कोई shoes भी आप खरीदना चाहते हो तो भी हम shoes का क्या देखते हैं, मतलब डिजाइन वहां पे देखते हैं. If you want to purchase the computer, laptop, we will prefer to see how it looks. Okay, or even now we are thinking about purchasing certain furniture. कोई फर्नीचर भी हम खरीदना चाहते हैं तो भी हम क्या देखेंगे, बोलो उस पर्टिकुलर फर्नीचर का क्या देखेंगे, हम लोग वहां पे डिजाइन देखेंगे. और आजकल की दुनिया में तो आपको पता है, अगर हम बाइक खरीदना चाहते हैं तो हम डिजाइन देखते हैं कैसी दिखती है वो बाइक, इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, इफ यू वांट टू परचेज द कार, हाउ द कार लुक्स इज एन इम्पोर्टेंट. ओके, उस कार के लुक पे उस कार का प्राइस करोड़ों रुपए में चला जाता है. कैन टेक आउट एन एग्जांपल ऑफ द फेरारी. उसका एक अपना अलग डिजाइन है जिसको देख के क्या हो जाता है, वहां पे अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है. ओके, एंड उस लुक के लिए लोग क्या करते हैं, वहां पे करोड़ सौ रुपए वहां पे क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं. ओके, यू गॉट द पॉइंट. इन द टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है बोलो कि प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ डिजाइन हो, उस प्रोडक्ट को कुछ आर्टिस्टिकली क्रिएट किया हो, ताकि लोग उस पे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए और उसको आसानी से खरीदने के लिए क्या हो जाए, वहां पे रेडी हो जाए. अट्रैक्शन उनका वहां पे क्रिएट हो जाए. ओके, बट द पॉइंट हैज बीन दैट हियर, सपोज मैंने एक डिजाइन बनाई है और वो डिजाइन मार्केट में कोई भी अपने नाम से बेच रहा है
तो एज यूजुअल ना आई विल फील बैड कि मैंने इतनी मेहनत की, हाँ, आई हैव गिवन माय स्किल, आई हैव गिवन माय हार्ड वर्क on creating that design, and somebody is coming and easily selling that particular design in the market, then I will not get motivated for next design. Okay, I will be demotivated. I may thought that what is the benefit of creating this design if somebody else easily can sell my design. Okay, so therefore मुझे नए नए डिजाइन्स बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए, मुझे उसका कमर्शियल बेनिफिट मिलने के लिए हमारा ये जो लॉ है डिजाइन एक्ट 2000 क्या किया गया, बनाया गया वहां पे. ओके, सो as already I have told you in the today's world how a product look to the eye is a very important, and for creating attraction in the mind of the public, generally people prefer to make some attractive design of the product. Now the question here comes is that what it means exactly by the word design. Design word का exact meaning क्या आता है, ये हमारा next question क्या होता है वहां पे create होता है. Okay, so let's have a look over the definition of the term design. सबसे पहले as usual हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे कि what is meant by this particular word design is the first question we will try to answer here. Okay, see, the design is something which is applied on the article. Design किस पे होगी बोलो, किसी चीज पे होगी ना. So keep in mind कि design is something which is applied on the article. Okay, I can put out the design on the shoes. Okay, I can put out the design on the clothes. Okay, I can put out the design on the TV. So design is something which is applied on the article. Design refers to the feature of the shape. Generally design किस फॉर्म में होता है बोलो, shape जो किसको अपील करता है, which can be appealed to the eye only. Design महसूस नहीं होगी. Okay, we can't feel the design. Okay, design can be judged by the only eye. We can't smell the design. डिजाइन हम लोग स्मेल करके महसूस नहीं कर सकते हैं, या फिर टच करके महसूस नहीं कर सकते. हाउ वी कैन जज द डिजाइन, डिजाइन कैन बी जज सोली बाय द आई ओनली. आंखों को दिखती है डिजाइन. ओके, सो डिजाइन को समझने के लिए, उस ब्यूटी को देखने के लिए किसकी जरूरत होगी बोलो, वहां पे आईज की जरूरत होगी. ओके, थोड़ा सा लॉ लैंग्वेज में जाते हैं अब. सेक्शन 2D ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 डिफाइंस द वर्ड डिजाइन. कौन सा सेक्शन डिजाइन डिफाइन करता है, नोट डाउन करके रखो. सेक्शन 2D ऑफ द डिजाइन एक्ट डिफाइंस द टर्म डिजाइन. ओके, लेट्स हैव अ लुक ओवर द डेफिनेशन. डेफिनेशन देखते हैं हम लोग अभी. Design means only the shape, configuration, pattern, word note down करते जाओ. Which section defines the term design? Section 2D defines the term design. Okay, and now what this word design means? Design means only the feature of number one shape. Design किस फॉर्म में हो सकता है बोलो, shape फॉर्म में हो सकता है. जैसे कि say for example ले लो आप वहाँ पे कि हमने कोई मेडिसिन की बोतल खरीदी है. तो वो मेडिसिन के बोतल को एक पर्टिकुलर शेप दिया गया, उस शेप को देख के हम लोग उसके टुवर्ड्स क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे मैंने एक देखा हुआ है, देखो द मेडिसिन सॉरी द टैबलेट्स ऑफ द कैल्शियम के टैबलेट्स की एक बोतल मैंने देखी है, उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है, उसका एक स्पेसिफिक शेप है. तो वो शेप उसका क्या बन जाता है बोलो, वहां पर डिजाइन बन जाता है. सो डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ द शेप हो सकता है. नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है. कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो जाता है, देखो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स. जैसे ना कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है, मोबाइल के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है. वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है. सो डिजाइन मीन्स शेप, कॉन्फ़िगरेशन. डिजाइन कैन बी अ पैटर्न. Design can be ornament or composition of a line, or a color applied to any article. Even design किस फॉर्म में हो सकता है, देखो composition of lines. अलग अलग लाइंस को कंपोज करके भी डिजाइन बनाई जा सकती है. अलग अलग कलर्स को कंबाइन करके भी क्या बनाई जा सकती है बोलो, डिजाइन बनाई जा सकती है. मैंने आपको पीछे भी बताया था, देखो सपोज ना वी आर वाचिंग अ टीवी, और चैनल का नाम नहीं दिख रहा है समझो हमें, लेकिन ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैनल चल रहा है. जैसे सपोज स्टार प्लस है तो उसकी अपनी एक अलग कलर कॉम्बिनेशन है, तो भले ही वहां पे स्टार प्लस नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ स्टार प्लस चैनल. ओके, दिस इज अ स्टार गोल्ड चैनल. ओके, और दिस इज अ कलर्स टीवी. इजीली उसके उस कलर कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है कि ये कौन सा टीवी अभी और कौन सा चैनल अभी चल रहा है. ओके, सो बैक अगेन देखो, डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ द शेप.
डिजाइन शेप फॉर्म में हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ लाइंस हो सकता है, या कंपोजिशन ऑफ कलर्स हो सकता है। अप्लाइड ऑन आर्टिकल, याद रखो दिमाग के अंदर है तो वो डिजाइन रजिस्टर नहीं हो सकती। डिजाइन तभी रजिस्टर होगी जब उसको आप किसी आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करोगे। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर डिजाइन ऑन, यू कैन से शूज, हाँ, you have to apply that particular design on the table lamp, or you have to apply that particular design to the fan, so therefore you have to apply that design on a particular article। किसी ना किसी आर्टिकल के ऊपर उस डिजाइन को अप्लाई करना क्या बोलो वहां पे जरूरी है। हाँ, सो डिजाइन मीन्स अ फीचर ऑफ द शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, कंपोजिशन ऑफ लाइंस, कलर applied to the article, हाँ, applied to article, this was the second element। हाँ, now ये डिजाइन कभी कभी टू डायमेंशनल भी हो सकती है, कभी कभी थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। हाँ, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन इन द सेंस कि व्हाट दिस मींस कि टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। हाँ, मतलब ना कभी कभी शेप प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऐसा भी डिजाइन हो सकता है, या कभी कभी शेप प्लस कंपोजिशन ऑफ लाइंस प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऐसा भी डिजाइन हो सकता है। ओके, सो डिजाइन में बी इन द फॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशंस और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ थ्री डायमेंशनल्स, हाँ, और बोथ फॉर्म, हाँ, बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मीन्स वेदर मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल, सेपरेट और कंबाइन। डिजाइन कैसे बनाई जा सकती है? देखो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी डिजाइन बनाई जा सकती है, हाँ, मैन्युअली भी डिजाइन बनाई जा सकती है, मैकेनिकली भी डिजाइन बनाई जा सकती है, हाँ, या फिर कॉम्बिनेशन करके भी क्या किया जा सकता है, डिजाइन बनाई जा सकती है। हाँ, सिंपली वी कैन टेक आउट एन एग्जांपल फॉर दिस वन। हाँ, देखो आपने हाथ पे बनाई हुई साड़ी की डिजाइन देखी है। हाँ, वी फाउंड दैट इन कोलकाता। हाँ, वो जो आश्रम है वहां पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ पे बनाई हुई कला से अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो वहां पे डिजाइन कैसे बन रही है बोलो? डिजाइन मैन्युअली बन रही है वहां पे। हाँ, और अपोजिट साइड क्या जगह ध्यान में रहा है, अगर वही डिजाइन, हाँ, किसी मशीन पे साड़ी का डिजाइन बना है तो वो डिजाइन क्या हो जाएगा बोलो? इट मे बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियली मेड, हाँ, दैट इज मैकेनिकली मेड। ओके, कभी कभी केमिकल्स के थ्रू भी हम डिजाइन बना सकते हैं। ओके, सो सिंपल है। हाँ, डिजाइन कैन बी मेड थ्रू द मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल, सेपरेट और कंबाइंड manner, which in the finished article appeal to and judged by solely the eye। हाँ, डिजाइन को हम ओनली किससे जज कर सकते हैं बोलो? डिजाइन कैन बी जज सोली बाय द आई, ओनली आई से डिजाइन को जज किया जा सकता है। हाँ, वापस डिवाइड करके फटाफट आपको डेफिनेशन बताती हूँ मैं। हाँ, which section defines the term design? section 2D। डिजाइन मींस फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, हाँ, और ना कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर applied on the article। Okay, whether it may be two dimensional or three dimensional or both, it may be made by industrial process, manual, mechanical, chemical, separate or combined, which is to be put onto the finished article like shoes or cloths etc, and which can be judged solely by the eye only। और जिसको जज किससे किया जा सकता है बोलो? ओनली आई से जिसको जज किया जा सकता है। हाँ, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिजाइन। ओके, सो व्हाट द पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिजाइन यहाँ पे? हाँ, तो देखो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बस यहाँ पे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डिजाइन में क्या नहीं आएगा पता है आपको? हाँ, डिजाइन डज नॉट इंक्लूड द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, क्योंकि बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन डेफिनेशन में लिए नहीं है। क्यों बोलो? बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को हम लोग आर्टिकल नहीं बोल सकते ना, कोई चीज नहीं बोल सकते उसको। हाँ, तो डिजाइन किस पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? बिल्डिंग और स्ट्रक्चर पे। हाँ, नंबर 2 देखो, डिजाइन डज नॉट इंक्लूड द मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी हमें डिजाइन एक्ट का प्रोटेक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। हाँ, देन डिजाइन डज नॉट इंक्लूड द ट्रेडमार्क, क्योंकि ट्रेडमार्क कौन से लॉ के नीचे आता है आपको पता है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के नीचे उसको प्रोटेक्ट किया गया। ओके, सो डिजाइन में बिल्डिंग नहीं आती है, कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, डिजाइन में ट्रेडमार्क नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क एक्ट के नीचे क्या किया गया बोलो? प्रोटेक्ट किया गया है वहां पे। हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डन इज दैट we have seen the concept of the design। Okay, now the second part from our synopsis we are going to start is the historical development of the design law। क्या देखेंगे हम लोग? historical development of the design law we are going to deal now। हाँ, let's see, देखो historical development of design law start कर देते हम लोग। हाँ, as usual हिस्ट्री देखनी है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग इंडिया पे नहीं आ सकते। हाँ, वी हैव टू गो समवेयर इन द इंटरनेशनल एस्पेक्ट। तो आप क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द डिजाइन लॉ दो पार्ट में डिवाइड होगा। आप जब पेपर लिखोगे, हाँ, इट विल बी इन द टू पार्ट। नंबर 1 पार्ट क्या होगा बोलो? डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन लॉ
at international level and development of the design law at a national level, that is in India. So दो पार्ट उसको A और B करके डिवाइड करके आंसर करोगे. हाँ, so first of all let's have a look on the international development of the design law. हाँ, देखो नंबर 1 जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट करता है हाँ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिजाइन इज अ पेरिस कन्वेंशन. सबसे पहला जो कौन सा आता है देखो यहाँ पे Paris Convention is the first convention which come on this particular point. हाँ, Paris Convention में हाँ there were certain provisions for the protection of the design. Design के protection के कुछ provisions दिए गए थे वहाँ पे. हाँ, specially Article 2 जो था ना Paris Convention का वो बोल रहा था national treatment of the industrial design and prohibit the member countries from imposing any condition हाँ of a domicile on the national of other countries. हाँ, आप जो प्रोटेक्शन आपके अपने ओन इंडिया हाँ डिजाइन्स को देते हो वही प्रोटेक्शन आप बाकी कंट्रीज के डिजाइन्स को भी दो. सो नेशनल प्रोटेक्शन और नेशनल ट्रीटमेंट was the provision which was introduced by the number 1 convention on design law at international level, which were note down करके लिया Paris Convention. हाँ, नंबर 2 कन्वेंशन क्या था देखो बर्न कन्वेंशन. याद है बर्न कन्वेंशन वैसे किसके लिए था? कॉपीराइट के लिए. हाँ, मैं भूलो मत. हाँ, बर्न कन्वेंशन aimed at protecting the literary and artistic work which include design under the category of the work of applied art. हाँ, एक्चुअली था किसके लिए? ये एक्चुअली था कॉपीराइट के लिए, लेकिन कॉपीराइट में उन्होंने एक पॉइंट कवर किया था और वो पॉइंट क्या था? वर्क ऑफ अप्लाइड आर्ट. हाँ, और वो वर्क ऑफ अप्लाइड आर्ट में किसको कवर अप कर दिया था? उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन को कवर अप कर दिया था. हाँ, सो आफ्टर पेरिस कन्वेंशन on the second step which is there Berne convention is there which is also protecting the design हाँ at an international level. हाँ, then फिर third आया Hague convention which is the third one. note down करके रखो Hague convention. हाँ, or it's called as a Hague agreement also. The Hague agreement concerned with the industrial deposit of industrial design. Specifically इंडस्ट्रियल डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिपॉजिट करके रखो, उसको प्रोटेक्शन दो. इसके लिए हेग कन्वेंशन क्या किया गया था? बनाया गया था वहां पे. हाँ, एंड फाइनली जो आता है वो फाइनली क्या आ जाता है देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट इज द फाइनल वन. ओके, ट्रिप्स आप वेल अवेयर हो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाँ एस्पेक्ट्स हैं जिसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. 1994 का ये लॉ है वहां पे. हाँ, दिस प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द मेंबर कंट्री हाँ दैट दे शैल प्रोवाइड प्रोटेक्शन हाँ टू द इंडस्ट्रियली क्रिएटेड न्यू डिजाइन. जो भी इंडस्ट्रियली क्रिएटेड न्यू डिजाइन है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ किया गया था वहां पे बनाया था ट्रिप्स. ओके, सो अगर हम इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है देखो पेरिस कन्वेंशन आया. हाँ, देन उसके बाद में कौन सा कन्वेंशन आया? बर्न कन्वेंशन, हेग एग्रीमेंट हाँ एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट आर द 4 स्टेप्स इन द इंटरनेशनल लेवल हिस्ट्री ऑफ द किस चीज की? डिजाइन लॉ. हाँ, नाउ मूविंग टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द डिजाइन लॉ, डेवलपमेंट ऑफ द डिजाइन लॉ है ना इंडिया हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे वहां पे. हाँ, देखो अगर लॉ वाइज बात करें तो ब्रिटिशर शुड बी गिवन द क्रेडिट हाँ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट डिजाइन लॉ इन इंडिया. इंडिया में पहला डिजाइन लॉ ब्रॉट आउट करने की जो क्रेडिट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा. सो यू मे हैव अ क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? हाँ, which is the first law? Okay, the Britishers enacted the first industrial design law in India, and the name of that particular law was the Patent and Design Act 1872, which is the first law. Patent and Design Act 1872 was the first law which has been introduced in India. Okay, that law continues but there were certain lacunas in that particular law. So finally what happens, see, in the year 1888 in the year which one mention करके रखो, in the year 1888 Invention and Design Act was enacted. Which law was enacted? Invention and Design Act was enacted in combination. Okay, Invention and Design Act was enacted in combination for the protection of the design in India. Then in the year 1907 what they have done is that they have introduced another law relating to the design. Okay, in which year? Okay, 1907 they have introduced one another law. But see what happened in the meantime now in 1907 in Britain, that is in England, there was one particular law
called as a Patent and Design Act 1907. Got the point what I want to say? Patent and Design Act 1907 was the law which was there in England. Now Britisher, what they have done, they have introduced the law on the basis of this particular point. इसी पॉइंट पे क्या करके लेके आए वो, इंडिया में एक अलग लॉ क्या करके आए वो लेके आए वहां पे. Another law they brought in India, which was the one law, as I already told you, that is Patent and Design Act 1911. Okay, this law came into force on the 1st of January. ये लॉ इंडिया में कब एनफोर्स हो गया? 1st of January को 1911 में एक्ट किया हो गया, वहां पे इंडिया में एनफोर्स हो गया. और ये लॉ फिर बहुत सालों तक इंडिया में क्या रहा, वहां पे कंटिन्यू रहा. सो इन कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, पेटेंट के लिए भी सेम लॉ था और डिजाइन के लिए भी क्या था, वहां पे सेम लॉ था. इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस पर्टिकुलर लॉ वाज प्रोटेक्टिंग द पेटेंट आल्सो एंड डिजाइन आल्सो. दोनों को ये लॉ क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट वहां पे कर रहा था. नाउ व्हाट हैपेंड, सी yesterday's law, remember what we have seen, Patent Act 1970 we have seen yesterday. पेटेंट एक्ट को उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे अलग कर दिया. सो पेटेंट एक्ट 1970 वहां पे क्या हो गया, अलग हो गया. तो बचा क्या, बोलो, इन द ईयर 1970 ओनली वन लॉ रिमेन एंड दैट ओनली वन लॉ रिमेन्स द डिजाइन एक्ट 1911. And it continues. Okay, in the meantime India also signed the TRIPS agreement. In the meantime India ने भी क्या कर दिया, बोलो, TRIPS agreement को साइन कर दिया. और इंडिया TRIPS agreement का क्या बन गया, वहां पे मेंबर बन गया. और अकॉर्डिंग टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट फिर हमने क्या कर दिया, हमारे इंडियन लॉ में चेंजेस लेके आए एंड वी ब्रॉट द फ्रेश डिजाइन एक्ट, दैट इज डिजाइन एक्ट 2000 इज द डिजाइन एक्ट कंटिन्यू रहा 2000 तक, in the sense of design act 1911, and then finally we had a separate design law called as a design act 2000 is the finally separate law we have remained there. Okay, now what this particular law has done for India, it enlarges the definition of design, it enlarges the definition of article, then it also contains the provision of non-registrable designs, registrable designs. Okay, it also give the provision for international system, it also give the provision for the registration of the design, then it also give the provision about the restoration of the lapsed design, etc. So this is what we can consider as the history of the design law in India. If we put out a short look on the history of the design law in India, what we can say is that one, we can number one, internationally बात करें तो पेरिस कन्वेंशन, उसके बाद बर्न कन्वेंशन, उसके बाद हेग कन्वेंशन, and finally क्या है, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994. And if we talk about the India, in a short about the history of the design law, so short history of design law in India कैसे कैसे डेवलप हुई. Number one, 1872 Patent and Design Act passed by Britisher. It continued up to the 1818. Then in the year 1818 Invention and Design Act was the another law which was created. Then in the year 1911 Patent and Design Act was created. Then that law continues for a longer time. In the year 1970 Patent Act was separated from the Design Act, and then remain only the Design Act 1911. Okay, that continues up to the 2000 year, and finally in the 2000 year the Parliament of India enacted the Design Act 2000 is the law which we have got. Okay, and even thereafter National Design Policy was obtained in the year 2007 also, which is an important part of this particular design provisions. So this is the history of the design law in India. India के design law की क्या होगी, बोलो, history हो गई. Okay, now furthermore we will proceed with the Design Act. History देखिए हमने, concept of the design हमने क्या किया, discuss किया. अब हम लोग डील करेंगे
with the registration of the design. Next point जो हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है बोला हमें, registration of the design is the point we are going to see now. हाँ सी देखो क्या गया वहां पे registration of design में. हाँ अगर आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए जो डिजाइन आपने बनाया उसके लिए, हाँ तो फिर आपको डिजाइन को क्या करके लेना पड़ेगा, आपके रजिस्टर करके लेना पड़ेगा. हाँ इट इज नेसेसरी कि आपने कोई न्यू या ओरिजिनल डिजाइन बनाई है तो यू शुड गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. हाँ और डिजाइन एक्ट 2000 में ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या की बोलो डिटेल में डिस्कस की गई है. हाँ नाउ वेरी फर्स्ट थिंग what we will look is that if you want to register your design you have to prove certain essential requirements. अगर आपको आपकी डिजाइन रजिस्टर करके लेनी है तो आपको कुछ essential requirements को प्रूव करना पड़ेगा. Let's have a look on that essential requirements. Okay, number 1 देखो novelty and originality. सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए बोलो आपको, अगर आपको डिजाइन रजिस्टर करके लेना है तो यू शुड हैव ब्रॉट समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आओ. हाँ ओरिजिनल लेके आओ तो आपको डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा. पुराना हाँ लेके आते हो और उसमें एक आध दूसरा वेरिएशन लेके आते हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना वहां पे. ओके सो डिजाइन कैन बी रजिस्टर्ड ओनली व्हेन इट इज अ न्यू, इट इज अ ओरिजिनल with respect to the class of article to which it has been applied. हाँ जिस भी आर्टिकल पे आप उसको अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड में वो डिजाइन क्या बोलो नया हो वहां पे. हाँ इसका एक इंटरेस्टिंग केस लॉ हुआ. सी देखो व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर केस. हाँ हेलो मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड हाँ वर्सेस थर्मोकिंग कैलिफोर्निया प्योर करके केस था. व्हाट इज द नेम ऑफ केस, हेलो मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हाँ थर्मोकिंग कैलिफोर्निया प्योर करके केस था. हाँ क्या हुआ देखो इस पर्टिकुलर केस में, एक ना वाटर डिस्पेंसर बनाया था. हाँ और उस वाटर डिस्पेंसर का जो शेप दिया था ना, डिजाइन जो बनाया था वो सिलेंडर का शेप दिया था. हाँ एंड दे वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड डिजाइन, सेइंग दैट कि बाबा कोई वाटर डिस्पेंसर अभी तक सिलेंडर के शेप में नहीं है. सिलेंडर समझता ना जो गैस का सिलेंडर आता है वो. हाँ लेकिन ना कोर्ट ने सॉरी यार रजिस्ट्रार ने वहां पे क्या हेल्ड किया पता है कि इसमें कुछ नया नहीं है. सिलेंडर का शेप सबको पता है. ओके सो इट शुड इन्वॉल्व सम element or something new which is not previously known to the public तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा. बट यहाँ पे ऐसे हेल्प किया कि बाबा इसमें कोई नया नहीं था, गैस का सिलेंडर सबको पता है. हाँ बस आप उसमें वाटर भर रहे हो, वाटर डिस्पेंसर को गैस का सिलेंडर का शेप दे रहे हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इन्वॉल्व नो न्यूनेस और देयर इन्वॉल्व नो ओरिजिनलिटी. ओके सो नंबर 1 पॉइंट ध्यान में आ गया, अगर आपको आपका डिजाइन रजिस्टर करके लेना है तो इट शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल. नंबर 2 देखो नो प्रायर पब्लिकेशन ऑफ डिजाइन. वो डिजाइन ऑलरेडी पब्लिश्ड नहीं चाहिए. हाँ वो डिजाइन ऑलरेडी लोगों के पास पहुंची हुई नहीं चाहिए. ओके डिजाइन शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड एनीवेयर इन इंडिया हाँ और इन द अदर कंट्री हाँ बाय पब्लिकेशन इन द टैंजिबल फॉर्म और हाँ बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन. ये डिजाइन आपकी ऑलरेडी इंडिया में और कहीं और पे पब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए तभी आपको डिजाइन का क्या होगा बोलो प्रोटेक्शन मिलेगा. हाँ अब ना एक केस था कैंपन कंपनी वर्सेस प्राइमा प्लास्टिक लिमिटेड करके. हाँ उस केस में क्या हुआ था, जिसने वो डिजाइन बनाई थी ना उसने क्या किया था वहां पे बस उसने क्या किया था वहां पे जस्ट ना किसी के साथ वो डिजाइन के बारे में उसने शेयर किया हुआ था. हाँ इट वाज हेल्ड दैट ओनली डिस्क्लोजर ऑफ द डिजाइन बाय प्रोप्राइटर टू अनदर पर्सन इन अ गुड फेथ विल नॉट अमाउंट एज अ पब्लिकेशन. हाँ जस्ट डिस्क्लोज किया था शेयर किया था कि बाबा ऐसा ऐसा डिजाइन मैंने बनाया और उसको जल्दी मैं रजिस्टर करवा के लेने वाला हूँ. हाँ तो फ्रेंड को या किसी पर्सन को गुड फेथ में बस बताना कि मैं ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहा हूँ did not amount as a publication. But the point has been that number 1, if you want to register your design, it should be new and original. Number 2, if you want to register your design, it should not have been published. Number 3, you must have applied your design to article. मैंने आपको बताया ओनली आपके दिमाग के अंदर डिजाइन होके वो डिजाइन नहीं बनती है. उस डिजाइन को आपको किसी शेप फॉर्म में, कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, कलर फॉर्म में किसी ना किसी आर्टिकल पे उतारना होगा. ओके आर्टिकल पे उतारना होगा मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान में रहे आप ऑर्नामेंट्स में डिजाइन बनाओ, ध्यान में रहे ज्वेलरी का डिजाइन बनाओ, आप किसी टॉय का डिजाइन बनाओ, टॉय खिलौने का डिजाइन बनाओ. हाँ किसी फ्लावर केस का डिजाइन बनाओ. हाँ बट किसी ना किसी आर्टिकल पे उस डिजाइन को उतारना क्या है वहां पे जरूरी है. हाँ
Then fourth point which is there, your design should not be contrary to the public order and morality. हाँ, आपका डिजाइन ऐसा ना हो जो किसको अफेक्ट कर रहा है, public order या morality को affect कर रहा है. Okay, so the next requirement for the industrial design to be registrable under section 5 of the act is that हाँ, your design should not be contrary to the public order or morality. हाँ, किसके against ना हो वो, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अगेंस्ट वो डिजाइन वहां पे ना हो. हाँ, सो गॉट द पॉइंट. मोरालिटी के अगेंस्ट, पब्लिक ऑर्डर, हाँ, नीतिमत्ता के अगेंस्ट अगर वो डिजाइन है तो डिजाइन रजिस्टर नहीं होगा. हाँ, गॉट द पॉइंट. सो अपोजिट साइड में अगर बात करें तो आपका डिजाइन कब कब रजिस्टर नहीं होगा, देखो अपोजिट साइड. हाँ, इफ इट इज नॉट न्यू एंड ओरिजिनल. हाँ, इफ इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड. हाँ, तो आपका डिजाइन क्या नहीं होगा बोलो, वहां पे रजिस्टर नहीं होगा. हाँ, इफ इट इज नॉन डिस्टिंग्विशेबल. नॉन डिस्टिंग्विशेबल मतलब कुछ अलग है ही नहीं उसमें, उस पुराने वाले डिजाइन में और इस नए वाले डिजाइन में कुछ अलग ही नहीं है, तो आपको डिजाइन का रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं मिलेगा. इसका भी एक फेमस केस लॉ हुआ था. हाँ, नॉन डिस्टिंग्विशेबल के लिए. सी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केस? हाँ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वर्सेस सारा ली बेकरी करके केस था. हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ केस? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वर्सेस सारा ली बेकरी करके केस था. 2001 का जजमेंट था. हाँ, क्या हो गया था देखो यहाँ पे. हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था. हाँ, कि एप्लीकेंट का जो रजिस्टर्ड डिजाइन ऑफ बिस्किट है मिल्क वाला, हाँ, इज नॉट सिमिलर टू द मिल्क क्रीम एज द मेन फीचर. both the biscuit are not same design. हाँ, looking to the eye of the customer. दो अलग अलग बिस्किट थे, एक था मिल्क वाला और दूसरा बिस्किट था मिल्क क्रीम बिस्किट, लेकिन दोनों का शेप टोटली एक दूसरे से अलग था. तो इसकी वजह से ना इट वाज हेल्ड कि यहाँ पे कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन एक्ट नहीं हो रहा है. हाँ, एंड फाइनली अगर आपका डिजाइन कोई ऑब्सिन, स्कैंडलस, वल्गर, हाँ, इमोरल एस्पेक्ट करता है तो वो भी डिजाइन रजिस्टर वहां पे नहीं होगा. हाँ, सो गॉट द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन, कि डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स चाहिए. ओके, इट शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल, इट शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड एनीवेयर. हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या डिस्कस किया हमने वहां पे? हाँ, that it should be applied to the article and it should not be opposed to the public order and morality. अगर ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं तो आपकी डिजाइन रजिस्ट्रेबल है, वरना आपकी डिजाइन रजिस्ट्रेबल नहीं है. Got the point? Now next step, who can apply to the registration? As usual, okay, section 5 of the act deal with this particular provision. What it's saying is that, see, any person claiming to be the proprietor of the new or original design which is not previously published and which is not contrary to the public order or morality can file the application for registration. कौन कर सकता है application for registration of design? Proprietor. Now who is a proprietor? You may have a question. Section 2J of the act defines the term proprietor. कौन कौन आया देखो proprietor में? फिर नंबर 1 जिसने खुद वो डिजाइन बनाई है, ऑथर ऑफ द डिजाइन. हाँ, नंबर 2 अगर वो डिजाइन किसी और को उसने क्या कर दिया वहां पे असाइन कर दिए, तो एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन द डिजाइन फ्रॉम ऑथर फॉर गुड कंसिडरेशन. हाँ, एंड नंबर 3 क्या आ जाता देखो वहां पे? एनी पर्सन ऑन हुम डिजाइन हैज डिवॉल्व्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोप्राइटर, मतलब लाइक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह. हाँ, इनमें से कोई भी क्या कर सकता है? डिजाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. हाँ, ओके, अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर पे. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन? ओके, इन ऑल सेक्शन 5 to 10 जो हमारे एक्ट के, वो किससे डील करते हैं बोलो? प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन. व्हिच आर सेक्शंस? सेक्शन 5 to 10. नंबर 1 एज यूजुअल क्या होगा बोलो? एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन. अभी अभी आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन में बी फाइल्ड बाय द एनी पर्सन हु इज अ प्रोप्राइटर ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन which is not previously published. Okay, next आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फिलअप करना है. ओके, एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनी विद 4 कॉपीज ऑफ द डिजाइन टू बी प्रोटेक्टेड. हाँ, जिस डिजाइन को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके क्या देने पड़ेंगे आपको? 4 कॉपीज. हाँ, एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली साइन बाय द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट की ड्यूली क्या चाहिए वहां पे? साइन चाहिए. नंबर 3, इट शुड स्टेट द क्लास इन विच डिजाइन इज टू बी रजिस्टर्ड. एग्जैक्टली कौन से एरिया में, बिस्किट, शूज, व्हाटएवर, कौन से एरिया में आप ये डिजाइन रजिस्टर करवाना चाहते हो. हाँ, एंड आर्टिकल ऑन विच द डिजाइन इज टू बी अप्लाइड. हाँ, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी बोलो? वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी. हाँ,
देन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोडक्ट में कुछ नया है, हाँ, तो स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी आपको देना पड़ेगा. एप्लीकेंट हैज टू फाइल अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी क्लेम्ड बाय द एप्लीकेंट फॉर द डिजाइन. मतलब यू हैव टू प्रूव हाउ योर डिजाइन इज ए न्यू. आपकी डिजाइन कैसे न्यू है वो आपको सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ. तो इन ऑल आपकी जो एप्लीकेशन थी वो कंट्रोलर के पास क्या होगी, बोलो, पहुंच गई. अब कंट्रोलर को डिसाइड करना है कि वो आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट. आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, ये किसको डिसाइड करना है, बोले, उस कंट्रोलर को डिसाइड करना है वहां पे. हाँ, तो इफ कंट्रोलर फील कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैज बीन सैटिस्फाइड, हाँ, तो वो आपको क्या करेगा, वहां पे डिजाइन का रजिस्ट्रेशन देगा वहां पे. लेकिन समझो, अगर आपके डिजाइन के रजिस्ट्रेशन को किसी का ऑब्जेक्शन आता है, हाँ, तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा पता है, वो ऑब्जेक्शन आपको सेंड कर देगा, हाँ, रिटर्न में, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, आंसर करना पड़ेगा वहां पे. हाँ, देन एप्लीकेंट और हिज एजेंट हैज टू रिमूव दोस ऑब्जेक्शन विद इन 1 मंथ. हाँ, एप्लीकेंट को 1 महीने का टाइम लिमिट मिलता है कि जिसमें आपको ऑब्जेक्शंस जो भी है वो सॉल्व करने पड़ेंगे वहां पे. हाँ, एंड फाइनली, हाँ, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टी, अगर उसको लगता है कि ऑल थिंग्स आर ओके, तो वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, आपको ग्रांट कर देगा. ओके, सो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजाइन filed in respect of the application, controller shall direct the registration and publication of particular of application in a official gazette. हाँ, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, वो पब्लिश हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट में. हाँ, और फिर यू विल बिकम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन. हाँ, आप उसके क्या हो जाओगे, बन जाओगे. और उसके लिए आपको इवन क्या दिया जाएगा, देखो, सर्टिफिकेट. व्हेन डिजाइन इज ए रजिस्टर्ड, the controller should grant a certificate of registration to the proprietor of design. proprietor of design को क्या grant किया जाएगा, बोलो, फिर finally certificate grant किया जाएगा वहां पे. ओके, so what the point, अब आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर हो गया. हाँ, when the design is registered, हाँ, proprietor will be entitled to the right to exclusive use of the design. अब उस डिजाइन का एक्सक्लूसिव यूज कौन कर सकता है, बोलो, ओनली द प्रोप्राइटर कैन यूज. हाँ, एंड ही कैन प्रोटेक्ट द डिजाइन फ्रॉम पायरेसी. उस डिजाइन को किससे बचा सकता है, पायरेसी मतलब चोरी से क्या कर सकता है, बचा सकता है. हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, आपको इस ऑल प्रोसीजर से आपकी डिजाइन क्या हो जाती है, बोलो, रजिस्टर हो जाती है. हाँ, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, ध्यान में आ गए. नंबर 1 पॉइंट, आपको एप्लीकेशन करना है. हाँ, नंबर 2 पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने वहां पे, हाँ, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या कनेक्ट करना है. नंबर 3 पॉइंट, एप्लीकेशन के साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी देना है. हाँ, देन आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा या किसी से ऑब्जेक्शन आ जाएंगे. ऑब्जेक्शन आते तो आपको रिटर्न में ऑब्जेक्शन इन्फॉर्म किए जाएंगे, जिसको आपको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, डिसीजन देना है. हाँ, एंड देन आफ्टर हियरिंग ऑल, कंट्रोलर विल टेक द डिसीजन. he will register your design and your design will be published in the official gazette and you will become the owner of the registered design. Huh? You will become the owner of that registered design. Huh? And once you become the owner of the registered design, huh, you will have the exclusive right to use that design, huh, and the right to protect the design from the piracy. So what the point, what we have discussed from your syllabus now, just procedure for the registration of a design registration की क्या discuss कर लिया हमने, procedure. हाँ, now here another question which comes is that is it possible to cancel the registered design. एक बार register हुई design क्या cancel हो सकती है, हाँ, is another question we have to deal. So the next point, section 19 of the Design Act we are going to deal. Huh? And what that section 19 is about, it's about cancellation of the registration. बहुत easy है, बहुत ज्यादा easy है. जो हमने ग्राउंड्स इसेंशियल्स देखे थे ना, को डिजाइन रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको उल्टा 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 करना है. हाँ, और वही ग्राउंड्स किसके हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन के हो जाता है. हाँ, जो किसमें दिए गए, बोलो, सेक्शन 19 में दिए गए. सी देखो, एनी पर्सन interested to present a petition for the cancellation of registration of design, at any time after the registration of design, आपको किसको अप्लाई करना पड़ेगा, कंट्रोलर. हाँ, और कौन से ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन कैंसिल हो सकता है, देखो, बराबर उल्टा करना है. नंबर 1, दैट डिजाइन हैज बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया. ये डिजाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. हाँ,
तो रजिस्टर्ड डिजाइन वापस री रजिस्टर नहीं हो सकती है, तो इस ग्राउंड पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन कैंसिल हो सकता है। हाँ, नंबर 2 देखो, इट हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडिया। हाँ, ऑलरेडी ये इंडिया में पब्लिश्ड है। हाँ, तो ये डिजाइन जो गलती से रजिस्टर हुई है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, नंबर 3, द डिजाइन इज नॉट न्यू और ओरिजिनल डिजाइन, इस डिजाइन में कुछ भी नया नहीं है। हाँ, न्यू नहीं है, तो इसकी वजह से इसका क्या रजिस्ट्रेशन क्या करो, कैंसिलेशन में लेके आओ। हाँ, देन नंबर 4, the design is not registerable under the act. Not registerable under the act मतलब याद है, हाँ, it is against public order, morality, no novelty. हाँ, then हाँ, that it is not a design within section 2D of the act. हाँ, मैंने एक बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को मैं डिजाइन एक्ट के नीचे रजिस्टर करवा के लेना चाहती हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा क्या वहां पे? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए डिजाइन के डेफिनेशन में ही नहीं आता ना वहां पे, क्योंकि डिजाइन के डेफिनेशन में किसी बिल्डिंग का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कवर अप की गई हुई नहीं है वहां पे। सो उस ग्राउंड पे मुझे रजिस्ट्रेशन जो गलती से दिया होगा वो भी क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल वहां पे हो जाएगा। हाँ, सो देन मेरा इन ऑल दिस पर्टिकुलर ग्राउंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, वहां पे डिजाइन को कैंसिल करवा सकते हैं जो रजिस्टर हो चुकी है उसको भी वहां पे। हाँ, इसका एक फेमस केस लॉ हुआ था। सी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, Gopal Glass Works Limited versus Assistant Control of Patent and Design. हाँ, what is the name of the case? Gopal Glass Works Limited versus Assistant Controller of Patent and Design. क्या हो गया था देखो इस केस में, the appellant was the manufacturer हाँ of the wired glass sheet. किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो, wired glass sheet। हाँ, a design was created by the appellant by purchasing embossing roller। उसने वो प्रॉपर एम्बोसिंग रोलर परचेस करके वो डिजाइन क्रिएट किए थी। हाँ, द कंट्रोलर कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन हाँ हैविंग बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, बट ना सेम टाइप के हाँ वायर्ड ग्लास ऑलरेडी अवेयर थे। ओके, तो इसकी वजह से ये जो सेकेंड टाइप के वायर्ड ग्लास का डिजाइन रजिस्टर हो गया था उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी वैसी डिजाइन क्या थी बोलो वहां पे रजिस्टर्ड थी। ओके, सो ऑन ऑल दिस ग्राउंड you can get the cancellation of even registered design under section 19 of the act. Number 1, if the design is previously registered. Number 2, if it is previously published. Number 3, if design did not involve anything new or original. Number 4, if the design is not registerable under the act. And number 5, if the design is basically not designed within section 2D of the act के नीचे वहां पे। हाँ, तो वो डिजाइन रजिस्टर वहां पे नहीं होगी। हाँ, got the point? So what we have seen is that रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिजाइन भी देखा हमने, और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन भी हमने क्या किया, जस्ट नाउ यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, then now last part of this particular chapter we are going to discuss is what we are going to see is that one देखो rights of the proprietor of the design holder and infringement of the copyright of the design। देखो राइट्स ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ डिजाइन होल्डर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हाँ, छोटा सा पॉइंट है। Number 1, when the design get registered, एक बार डिजाइन क्या हो गए बोलो रजिस्टर्ड हो गए, तो रजिस्टर्ड ये इंटरेस्टिंग है, याद रखो ये बोलने का स्टाइल होता है। एक बार आपकी डिजाइन रजिस्टर्ड हो गई ना तो उस डिजाइन में मुझे कॉपीराइट मिलता है। डोंट गो इनटू द कॉपीराइट एक्ट। यहाँ पे ये लैंग्वेज ही ऐसी यूज्ड है कि उस डिजाइन पे मुझे कॉपीराइट मिलता है, बट लॉ कौन सा, डिजाइन एक्ट 2000, यू आर नॉट सपोज टू गो इनटू द कॉपीराइट एक्ट। व्हेन द डिजाइन इज रजिस्टर्ड, the registered proprietor of the design have the copyright in the design। क्या मिल जाएगा बोलो मुझे, copyright in design मिल जाएगा। हाँ, for the period of the 10 year from the date of registration। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से कितने दिन के लिए मुझे उस पर्टिकुलर डिजाइन पे कॉपीराइट मिलेगा बोलो, 10 ईयर के लिए। हाँ, तो यू विल हैव अ क्वेश्चन इन द माइंड कि क्या ये 10 ईयर का पीरियड वापस रिन्यू हो सकता है। याद रखो डिजाइन का 10 ईयर का पीरियड ओनली वंस रिन्यू हो सकता है एंड एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर 5 ईयर। हाँ, उसके बाद में नहीं, क्योंकि आपको पता है डिजाइन पुरानी हो जाती है। हाँ, एक बार लोगों ने देख ली तो कोई भी उसको आसानी से कॉपी कर सकता है। सो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फॉर द डिजाइन इज 15 ईयर, 10 + 5, ओरिजिनल 10, एक्सटेंडेड 5। हाँ, दिस पीरियड ऑफ द 10 ईयर कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू द 5 ईयर if the application is made for the extension after the expiry of the 10 year। Okay, so it means the maximum period for which a copyright and design can be claimed is a 10 + 5, that is कितना हो जाएगा वहां पे 15 ईयर क्रिएट हो जाएगा। ओके, हाँ, देन देखो क्या आगे। हाँ, the copyright and design can be claimed only by the registered design।
जो डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है उसको इस एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। डिजाइन एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए आपकी डिजाइन कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना जरूरी है वहां पे। हाँ, सो बी क्लियर विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट वहां पे। ओके, सो एंड द सेकंड राइट व्हिच अ डिजाइन होल्डर गेट is the action for the infringement of the copyright। हाँ, अगर कोई आपके कॉपीराइट इन डिजाइन को वायलेट करता है, जिसको मैंने बोला था डिजाइन एक्ट के नीचे कॉल किया जाता है पायरेसी ऑफ द डिजाइन बोला जाता है उसको। हाँ, अगर उसको कोई इन्फ्रिंज करता है तो आपको पायरेसी के लिए एक्शन लेने का अधिकार वहां पे मिल जाता है। ओके, सो टुडेज लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डील इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन डिजाइन। हाँ, प्रोसीजर एंड रेमेडीज देयरफॉर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा, बोलो piracy of the design। Let's have a look on the meaning. Exactly what is mean by the word piracy of design और exactly what is mean by the word infringement of design। दोनों का मीनिंग सेम है, infringement of design oblique piracy of design। Okay, सी देखो, infringement of the copyright in registered design is known as a piracy। इसको और एक नाम क्या है, पायरेसी और एक नाम है। कब कब पायरेसी होगी देखो, हाँ, it shall not be lawful for any person during the existence of copyright in design to do the following act। जब तक उस पर्टिकुलर डिजाइन को, हाँ, डिजाइन एक्ट के नीचे कॉपीराइटेड है, वो प्रोटेक्टेड है, तब तक आप क्या क्या नहीं कर सकते हो देखो रजिस्टर्ड डिजाइन के साथ में। नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अप्लाई और कॉस्ट टू बी अप्लाइड टू एनी आर्टिकल इन एनी क्लास ऑफ आर्टिकल इन विच डिजाइन इज रजिस्टर्ड। हाँ, वो डिजाइन जिस फील्ड के आर्टिकल पे रजिस्टर्ड है उसी फील्ड में आप उसको वापस रीयूज कर रहे हो विदाउट कंसेंट, विदाउट लाइसेंस, विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, तो आप इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कर रहे हो। हाँ, नंबर 2, आप ऐसी इंफ्रिंज्ड डिजाइन इंपोर्ट कर रहे हो। To import for the purpose of the sale without the consent of the registered proprietor any article belonging to the class in which a design is a registered। import, हाँ, पहले में sell, दूसरे में import for sell एंड तीसरे में आप उसको पब्लिश या एक्सपोज कर रहे हो। हाँ, knowing that the design is a infringed or it is a fraudulent or it is a imitation of the already registered design। हाँ, आप उसको क्या कर रहे हो, बोलो पब्लिश या एक्सपोज फॉर द सेल ऑफ द आर्टिकल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन वहां पे कर रहे हो, ऐसे लॉ कंसिडर करते हैं। मतलब इन ऑल रजिस्टर्ड डिजाइन होल्डर के परमिशन के बिना आप उस पर्टिकुलर डिजाइन को, हाँ, दूसरे प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बोलो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन कर रहे हो, पायरेसी ऑफ द डिजाइन कर रहे हो, ऐसे कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, देखो, we will just take out simple case laws for that within a minute। हाँ, एक फेमस केस हुआ हाँ some time before, that is एप्पल वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के बीच में। हाँ, और इस केस में क्या होता पता है, एप्पल ने सैमसंग पे केस किया था कि सैमसंग हैज कॉपीड द डिजाइन ऑफ देयर टैबलेट एंड फोन्स। सैमसंग ने एप्पल के फोन के, हाँ, और टैबलेट के डिजाइन कॉपी कर दिए। हाँ, ऐसे करके सैमसंग पे एप्पल ने क्या किया था, सूट फाइल किया था दिसंबर 2016 में। हाँ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया और बोला कि यस, सैमसंग ने एप्पल के फोन्स को क्या किया हुआ है, वहां पे डिजाइन को कॉपी किया एंड $400 मिलियन का कंपेंसेशन पे करने के ऑर्डर सैमसंग को दी गई थी। हाँ, बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट। सो इसका मतलब जब आपकी किसी की और पर्सन की कंपनी की रजिस्टर्ड डिजाइन, हाँ, आप सिमिलर आर्टिकल पे अप्लाई करते हो, हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, बोलो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन या पायरेसी ऑफ द डिजाइन कर रहे हो, ऐसे लॉ कंसिडर करता है वहां पे। ध्यान में मीनिंग तो देखा हमने अब इन्फ्रिंजमेंट का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी डिजाइन इन्फ्रिंज हो चुकी है, हाँ, तो आपके पास रेमेडीज क्या क्या है। हाँ, एज यूजुअल civil remedies you have, and what is the civil remedy you have? Number 1 civil remedy you have is the damages। You can file the suit for damages। and number 2, immediately उसको रोकने के लिए आपके पास immediate relief क्या है, याद है, injunction। हाँ, जो भी चल रहा है उसके लिए आप immediate क्या कर सकते हो, वहाँ पे injunction की सूट फाइल कर सकते हो वहाँ पे। So 2 remedies you have, you can file the suit for damages। जैसे अभी हमने देखा कि Apple was given the damages by Samsung। हाँ, जस्ट अभी हमने जो एग्जांपल यहाँ पे देखा था, नंबर 1 रेमेडी एंड नंबर 2 रेमेडी इमीडिएट उसको रोकने के लिए किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकते हो आप, वहां पे सूट फॉर इंजंक्शन भी आप फाइल कर सकते हो। हाँ, यू मे हैव अ क्वेश्चन, ये सूट फाइल कहाँ पे करने,
तो ये सूट फाइल करना है एज यूजुअल. सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस और इंजंक्शन कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कहाँ पे सूट फाइल की जाएगी बोलो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल की जाएगी. वहां पे एक फाइन की भी प्रोविजन है. वहां पे द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द पायरेसी ऑफ द डिजाइन may be made liable to pay a sum of rupees 25,000 recoverable as a contract debt for every contravention. हाँ, for every contravention कितने रुपए उस पर्टिकुलर पर्सन से रिकवरेबल होंगे बोलो? 25,000 रुपीज विल बी रिकवरेबल. हाँ, फॉर एवरी कॉन्ट्रावेंशन ऐसे कंसिडर किया गया. हाँ, एंड सूट कहाँ पे फाइल करनी है? जानना है आपको. सूट फाइल करनी है हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. ये सूट क्या करनी है? यहाँ पे फाइल करनी है. हाँ, सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ द डिजाइन एक्ट और व्हाट यू कैन से द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन. एक लास्ट केस लेते हैं जिसमें आपको एक रेमेडी का फॉर्मेट देखने को मिलेगा and then we will stop today's lecture. Okay, cello household products वर्सेस मोडवेयर इंडियन अनदर करके एक फेमस केस हुआ था. हाँ, इस केस में क्या हुआ था पता है आपको? हाँ, कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द केस जस्टिफाई किया हाँ कि प्लेंटिफ ने केस में जो सूट फाइल की थी डिफेंडेंट के अगेंस्ट. हाँ, डिफेंडेंट कौन है बोलो? मोडवेयर. हाँ, क्या करके सूट फाइल कर दी थी वो देखो. मोडवेयर ने हाँ सेलो कंपनी के हाँ बॉटल की सिमिलर डिजाइन कॉपी की है वहां पे. हाँ, ये करके उन्होंने क्या किया था? डिफेंडेंट पे सूट फाइल किया था और इट वाज हेल्ड कि यस दे हैव मेड द piracy of the design of the bottle of the cello company. हाँ, and so defendant was ordered to pay the damages to the plaintiff and as well as the order of the injunction was also granted. हाँ, कि जो भी बॉटल आपके पास है पायरेटेड उसका सेल इमीडिएटली क्या करो आप वहां पे रोक दो एंड फर्दर इनको डैमेजेस क्या कर दो वहां पे पे कर दो. हाँ, सो दैट इज द लास्ट पॉइंट वी फिनिश्ड हियर. कौन सा पॉइंट फिनिश किया हमने? रेमेडी फॉर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन और रेमेडी फॉर व्हाट यू कैन कॉल एज piracy of the design. Okay friends, so we have finished out here Design Act 2000. The points we have covered today was concept of design. Number 2, development of the design law with international history and national history also. Number 3, registration of design, its procedure, where to file application, how to file application, content of application and all that. Number 4, cancellation of the design. Number 5, procedure for the registration of design. Number 6, rights of the design holder. And number last, legal remedies which are available for the infringement of the design. So all these points we have discussed today and we have finished our chapter number 5, that is Design Act. हमने आज क्या कर दिया यहाँ पे? खत्म कर दिया from your syllabus of the intellectual property law. Tomorrow we will deal with the Biodiversity Act 2002 से हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे. वो भी एक interesting topic है, Biodiversity Act 2002. Okay, so that's it for today. Thank you for your kind presence. Thank you.